जाती कोणाची कोणाची आपल्या आराधनाकडे स्तुतीला देवून महिमा आणि आपल्या सुरुवात प्रार्थना કરીશું આપણા જીવનનું જીવ પવિત્ર અને ઈશ્વરે પાવર પણ ચડાવીશું ઈશ્વર આપણા પણ માન્ય થાય ઈશ્વરનો વિરાજમાન પરમેશ્વર આપણા બધું આપણા જીવનનો ગુણહાત્મા સમયે આપણા મન આત્મા શરીર ઈચ્છા પવિત્ર આત્માના આદેશમાં રાખી અને સ્તુતિ આપણને શુરુઆતની પ્રાર્થનામાં प्रार्थना करिए। जीवन देने वाला प्रेम विजय मुझे सगळ्या तुम्हारा आभार मानायचे शिकता प्रभू आ सुंदर सवाल हमारा जीवन में प्रतिमा तुम्हारा आभार मानायचे प्रभु यीशु प्रभु घણા બધા લોકો પ્રભુ સુવાસના કારણે આપણે સત્તા પર પુસ્તક દૂર લાવવા મદદ કરते शिकता प्रभु यीशु अपनी आखी मुक्ति सभाને તમારા હાથમાં સોંપે છે પ્રભુ यीशु વગનારાને ગાનારા બેન પ્રભુ તમે આ મદદ કરते शिकता प्रभु यीशु प्रभु समय જાય ત્યારે પ્રભુ બધાને બંધનોમાંથી છુટકારા મળે સ્વાદ દે शिकता प्रभु हमारे द्वारा તમારો નિર્ણય થયો સ્વાદ દે शिकता प्रभु हम કે બધા બાળકોને પ્રભુ તમારી આરાધના કરતા શીખવું शिकता प्रभु से કે માણસ પ્રભુ તાળી વગાડીને પ્રભુ તમારે લોકો જાય સ્વાદ દે शिकता प्रभु वचનમાં તમે આગળ લઈ જજો शिकता प्रभु સાહેબ જે પ્રભુ વચન આપવાના છે પ્રભુ તે વચન દ્વારા અમારા જીવનનું પરિવર્તન થઈ શકે સ્વાદ દે પ્રભુ તમે વચનમાં પ્રભુ સહાય કરવા માટે મદદ કરી शिकता प्रभु સાથે મુક્તિ સભાને તમારા હાથમાં સોંપતા પ્રભુ ઈશ્વરના નામમાં Haleluya. Haleluya. Prof. Yesus masih ke? जय Kita lakukan pertemuan ini. Katakan ucap dari Jadi Permeswar kata aradhana કરીશું. Teman kata Permeswar સ્તુતિ કરી. આપણા ઠાકોરની સાથે આપણા હૃદયમાં ઉચ્ચાર કરીશું. પરમેશ્વર કહેવાય. એ જીવિત પરમેશ્વરની આપણે આરાધના કરીએ. જેણે નરકની પર વિજય મેળવ્યો છે, જેણે પાપની પર મૃત્યુની પર જય મેળવ્યો છે, પરમેશ્વરની આરાધના કરીએ. હે જીવિત પરમેશ્વર મેં તેરી આરાધના કરતા जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ।
प्रभु की आराधना करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद दिवस आपका जय माता दी। આપણે આરાધના કરીએ પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ કેમ કે ઘણા બધા લોકો આજે જોવા પામ્યા નથી, પણ આપણે ચિંતા છે. પ્રભુનું વચન કહે છે ઈસાઈયા 150 ના 6 કલમમાં કે શ્વાસોશ્વાસ કરનારા સર્વ તમે યહોવાની સ્તુતિ કરો. કેમ કે ખબર નહોતા પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરી શકતા નથી. આપણે બધા પોતાના મુખ પર ઉગાડીને પ્રભુ પોતાનો સુંદર અવાજ આપ્યો છે ત્યારે તાળી પાડીને પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. આજે કા દિન
शुरुआत करेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश जो प्रभु स्वामी સાથે ના પછી નિરાશ રહેવાય કેમ કે તે રાજાનો રાજા છે ને શાંતિનો રાજકુમાર આપણી અંદર છે એ શાંતિનો રાજા છે જો આપણા હૃદયમાં પ્રભુ ઈસુ હોય તો આપણાથી નિરાશ રહેવાય નહીં ચિંતા આપણા કરી શકાય નહીં કેમ કે જગતમાં જે છે એના કરતાં આપણે અંદર જે છે કોણ છે બહુ મોટો પરમેશ્વર છે એ આપણા માટે શાંતિદાતા છે मुक्तिदाता છે સર્વશક્તિમાન છે આપણે પરમેશ્વરની આરાધના કરીએ બોલો પ્રભુ ઈસુ મસીહ કે જય ઈસુ आप रहेंगे साथ हम कभी ना धन्यवाद करता हूँ प्रभु
ઉપવાસ કરી છે, આપણે જે ઉખાડો કર્યા છે, બધાને આપણે યાદ કરીને આજે પરમેશ્વર જે ઉત્તમ છે, તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, એ ભેટ આપણે પરમેશ્વરને ચડાવી. પ્રભુ તમારા રાજ્યમાં જે ઉખાડો કર્યા છે, જે મોટા મોટા કામો કર્યા છે, જે ચમત્કારો કર્યા છે, જે ભલાઈઓ કરી છે, જે આશ્ચર્ય કર્મ કર્યા છે, એને યાદ કરીને મનુષ્ય જાત તેની સ્તુતિ કરે તો કેવું સારું. આજે આપણે પરમેશ્વર છે, એના નામને, એના કામોને આપણે શુદ્ધ ગૌરવ આપ્યા. તે યોગ્ય પરમેશ્વર છે, તે સ્તુતિના સિંહાસન પર બિરાજમાન પરમેશ્વર છે. આજે આપણે સ્તુતિના સિંહાસન પર બિરાજમાન થવા છે. એની નજર, એલરોય પરમેશ્વરની નજર આજે કે પૃથ્વીનું નિરીક્ષણ કર્યા કરે છે. કે જેઓના હૃદય એમના પ્રત્યે સંપૂર્ણ છે, તેઓને તે બદલો આપનારો પરમેશ્વર છે. આજે જ્યારે પરમેશ્વર આપણી પાસે આવી, જ્યારે તે આપણને જુએ, જ્યારે આપણી અંદર તે નજર કરીને જુએ, ત્યારે આપણે ન્યાય માલુમ પડે. આપણા કામોમાં, આપણા વર્તનમાં, આપણા શબ્દોમાં, આપણા જીવનમાં આપણે એને ગમતું અને ભાવતું જીવન આપીએ, એ આપણી અંદર જોઈ શકીએ. આજે આપણે પ્રભુ ઈશ્વરની સમાન પવિત્ર બનીએ. આજે સવારે આપણા શરીરનું જીવતું અને પવિત્ર અને દેવને ભાવેલું અર્પણ આપણે જણાવીએ. ખરા દિલથી અને પૂરા મનથી પરમેશ્વરની આરાધના કરીએ. તાળીઓ પાડીને, હાથો ઊંચા કરીને આપણે પરમેશ્વરની આરાધના કરીએ. કેમ કે તે બહારના દેખાતા આમ જોતો નથી, પણ એ હૃદયને પારખનાર પરમેશ્વર છે. એ અંતર્યામી પરમેશ્વર છે. આપણા હૃદયને તેને નિહાળી રહ્યો છે. એ આપણા મનને તપાસી રહ્યો છે. આજે પ્રભુનું વચન કહે છે કે તમારી અંદર વિશ્વાસ છે કે નહીં, એની પરીક્ષા તમે પોતે કરો. આજે આપણે આપણા મનને સિદ્ધ કરીએ, આપણા જીવનને સંપૂર્ણતા તરફ લઈ જઈએ. આજે આપણે કેમ કે દિવસો થોડા છે, પ્રભુના આગમન નજીક છે, ત્યારે વાલાઓ આજે આપણે કન્યા તરીકે આપણી જાતને સાંધારીએ. વચનો દ્વારા, પ્રાર્થના દ્વારા, આરાધના સ્તુતિ દ્વારા આપણા જીવનને આપણે સુશોભિત કરીએ. હાલેલુયા. કેમ કે પરમેશ્વર તે ન્યાય પરમેશ્વર છે. હાલેલુયા. પ્રભુનું વચન કહે છે કે જે શુદ્ધ છે તેઓને ધન્ય છે, જેઓ હૃદયમાં શુદ્ધ છે તેઓને ધન્ય છે, જે લોકો મનોમાં શુદ્ધ છે તેઓને ધન્ય છે, કેમ કે તેઓ દેવને જોશે, તો પૃથ્વીનું વરદાન પામશે. પ્રભુનું વચન કહે છે. આજે સવારે શુદ્ધ અંતઃકરણથી એ પરમેશ્વરની પાસે આવીએ. હાલેલુયા. આપણા હૃદયને ખાલી કરીએ એની આગળ અને પ્રભુને કહે, પ્રભુ ઈશ્વર આજે સવારે તમે મારા જીવનમાં, મારી અંદર તમે સમાઈ જાઓ. અને આજની આરાધના દ્વારા પ્રભુની મહિમા મળે. હાલેલુયા. આપણે એના નામને ઊંચું થાય, એના નામની સ્તુતિ કરી, એના નામની જકાર કરીએ. हालेलुया. आराधना को आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना. हालेलुया. पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना. हालेलुया. दूतों साथ આપણે એની આરાધના કરીએ. હાલેલુયા. સ્તુતિ પ્રશંસા આરાધના કરીએ. હાલેલુયા. કરુને મહિમા આપ્યા છે સવારે. હાલેલુયા. થેન્ક યુ લોર્ડ, થેન્ક યુ જીસસ. હાલેલુયા. પૂરેપૂરી હૃદયની અને મનની તૈયારી સાથે આપણે આપણા ભેટોને પરમેશ્વરને આગળ લઈને આવીએ. આપણે ચડાવીએ છીએ આજે સવારે ઉત્તમ ચડાવીએ. હાલેલુયા. કાયમની સમાન નહીં, પણ હાબેલની સમાન એને રક્ત વેવડાવીને અને બલિદાન આપીને પરમેશ્વરને અર્પણ ચડાવ્યું. એને પ્રભુએ એના હૃદયને, એના મનને જોયું અને એના હાથોથી કરેલા ભેટને સ્વીકાર કરી. આજે સવારે પ્રભુ આપણા ભેટને જોઈને એ રાજી થાય, પ્રભુ ખુશ થાય, પ્રભુ પ્રસન્ન થઈ જાય. જે માણસ પર આજે દેવ પ્રસન્ન છે, એ માણસના જે ધન્ય છે, કે તેના પર પ્રભુ આજે પ્રસન્ન છે. હાલેલુયા. ધન્યવાદ ઈશ્વર, ધન્યવાદ રાજા. પ્રભુ તમારો મહિમા કરીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ તમારા નામની જય જયકાર કરીએ છીએ. હાલેલુયા. આર્ય સ્વર્ગ તમારું સિંહાસન છે લોર્ડ. હાલેલુયા. ઓ ધન્યવાદ ઈશ્વર, સ્વર્ગના પરમેશ્વર મારી મધ્ય ઉતરી આવો. હાલેલુયા. તારી ઉપસ્થિતિ આજે જગ્યાને ભરી દો પ્રભુ. હાલેલુયા. પ્રભુ જે મુસાએ કહ્યું, જો દેવતાની સમક્ષ તમારી સાથે નહીં આવે હું એક પણ ડગલું આગળ વધીશ નહીં. પ્રભુ ઈશ્વર, આજે તમારી ઉપસ્થિતિની જરૂર છે, તારી ભરપૂરી પણ આજે અમને જરૂર છે. તમારા પવિત્ર આત્માની હાજરી આજે મારી મધ્યમાં માંગી રહી છે. પવિત્ર આત્મા તમે આવો, આજે અમારી સાથે વાત કરો. હાલેલુયા. પ્રભુને ગમતું ભાવ પણ ચડાવવા માટે પવિત્ર આત્મા અમને મદદ કરો, અમને સહાય કરો. હાલેલુયા. ઓ રબા શંદના રબો રબા જીસસ. હાલેલુયા. ધન્યવાદ ઈશ્વર, ધન્યવાદ રાજા. હાલેલુયા. થેન્ક યુ લોર્ડ, થેન્ક યુ જીસસ. હાલેલુયા. ધન્ય રાજા, ધન્ય પ્રભુ. હાલેલુયા. આરાધે
એક અનુભવ કાફી છે મારા જીવનને માટે પરમેશ્વર પિતા ઈસુની સાથેની એક મુલાકાત આપણા માટે કાફી છે. હાલેલુયા. એનું એક વચન આપણા માટે કાફી છે. હાલેલુયા. આપણા જીવનને બદલવાને માટે, આપણા કામોને બદલવાને માટે પ્રભુ ઈસુની એક મુલાકાત આપણા માટે કાફી છે. હાલેલુયા. આપણા માટે ઈસુ કાફી છે. વર્ષોની મહેનત હોય, વર્ષોનો સ્વભાવ હોય, પૂર્વજોનો સ્વભાવ હોય, કોઈ પણ આપણા જીવનની બાબતો હોય, આપણા માટે આજે ઈસુ કાફી છે. બદલવાને માટે, પરિવર્તન લાવવાને માટે ઈસુ કાફી છે. જો કોઈ બદલાઈ નથી રહ્યું, એવું ને એવું જ છે. આજે પ્રભુ ઈસુની જરૂર છે. આજે આપણા પરિવારો, આપણા ઘરોની અંદર, આપણા બાળકોની અંદર એ ઈસુ જ્યારે આપણા જીવનમાં આવશે, એ સગળું બદલી નાખશે, એ જૂનું સર્વ દૂર કરશે અને સગળું નવું કરનાર પરમેશ્વર આજે આપણી અંદર છે. હાલેલુયા. ઓ રબા શાંદાના બોલો રબા શકાના બોલો રબા. આજે અશક્ય થઈ પડ્યું છે, અસંભવ થઈ પડ્યું છે. આંખો જોવા માંગે છે પણ જોઈ શકતી નથી. સૂંધી રહી છે બાબતોને વર્ષોથી. આપણા જીવનમાં પ્રભુ આ બાબત મારા જન્મ ક્યારે બને, ક્યારે થશે આ જીવનમાં મારી બાબતો. હાલેલુયા. આજે વર્ષોની પ્રાર્થના એ પરમેશ્વર ઉત્તર આપનાર પરમેશ્વર છે. ધન્યવાદ ઈશ્વર, ધન્યવાદ રાજા. હાલેલુયા. જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ઝાંખીના ઘરમાં આવ્યા, એની પાસે સર્વસ્વ હતું, પણ જ્યારે પ્રભુ ઈસુ એના જીવનમાં આવ્યા, એનું જીવન બદલાઈ ગયું. એના ઘરની પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ. બાળકોના જીવનમાં, પતિના જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું. આજે પ્રભુ ઈસુ આપણા ઘરમાં આવવાની જરૂર છે, આપણા જીવનમાં આવવાની જરૂર છે. પ્રભુ ઈસુ કાના ગામના લગ્નમાં હાજરી આપવાને માટે ગયા. આજે એમની ખૂટેલી પરિસ્થિતિની અંદર પરમેશ્વર પિતાએ ભરપૂરીપણું લઈને આપ્યા. પ્રભુ ઈસુ એ આપણી લાજ રાખનારો પરમેશ્વર છે. એ આપણી ઇજ્જતને સાચવી રાખનારો પરમેશ્વર છે. એ ક્યારે આપણને મૂકી દેતો નથી, આપણને તજી દેતો નથી. આપણી નબળાઈઓને જોઈને તે આપણને આપણાથી દૂર ભાગતો નથી. પણ આપણો પરમેશ્વર જ્યારે આપણે તૂટેલા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણી પાસે આવનારો પરમેશ્વર છે. એ ભંગિત હૃદયવાળાને ચાહે છે, એ નમ્ર હૃદયવાળાને ચાહે છે. આજે પ્રભુ ઈસુની આગળ આપણે તૂટેલા મને આપીએ, તૂટેલા દિલને આપીએ. જેમ કોઈ નવાડી સ્ત્રી એક આશા અને વિશ્વાસથી પ્રભુની પાસે આવી, કેમ કે એને ખબર હતું કે મારું સર્વસ્વ મેં ગુમાવી દીધું છે, મારી પાસે કશું રહ્યું નથી. ઈસુ સિવાય મારી પાસે કોઈ નથી. ઈસુ એ જ મારા માટે જે આશરો અને સહારો બન્યો છે. એ મારા માટે વેદ છે, મારા માટે ડોક્ટર છે. પ્રભુ ઈસુ એને ખબર હતી એની પરિસ્થિતિ. આજે લોકોને તમારી પરિસ્થિતિ ખબર હોય કે ના હોય, તો આવો તમને તમારી પરિસ્થિતિ ખબર છે. કોઈ પણ જાતનો શરમ અને સંકોચ કર્યા વગર, સંસારને જોયા વગર, આજુબાજુ જોયા વગર, પરવાહ કર્યા વગર આજે પ્રભુ ઈસુને તમે સ્પર્શી લો. પ્રભુ ઈસુ પર વિશ્વાસ રાખો. એ તમને સાજા કરશે, એ તમને દરેક બાબતોમાંથી બહાર કાઢશે. જેમાં તમને કોઈ નથી કાઢી શકતું, જેમાં તમને કોઈ મુક્ત નથી કરી શકતું, જેથી તમને કોઈ આઝાદ નથી કરી શકતું. પ્રભુ ઈસુ તમને આ છુટકારો આપશે. આજે બેનની સમાન, એ બાઈની સમાન આજે આપણે હૃદયથી વિશ્વાસ કરીએ અને પૂરા સમર્પણની સાથે એ ઘરમાંથી નીકળી ગઈ. એ ભીડની પરવા કર્યા વગર, કદાચ એની પાસે શક્તિ નહીં રહી હોય ચાલવા માટે, ભીડમાં જવા માટે, છતાં પણ એની શક્તિને એકઠી કરી અને સામર્થ્ય ભેગું કર્યું અને ભીડમાં ધસી ગઈ. વાળાઓ, આજે આપણે પૂરા દિલથી, પૂરા મનથી, તન મન ધનથી પ્રભુની સેવા કરીએ. હાલેલુયા. આપણી પાસે જે છે એ પ્રભુને જણાવીએ, પ્રભુને આપીએ. કોઈ પણ જાતની પરવા કર્યા વગર એ વિધવાએ એક દમડી એની પાસે હતી એને નાખી દીધી, કેમ કે જાણતી હતી કે મારો પ્રભુ મને પૂરું કરશે. હાલેલુયા. કેમ કે જેને આપી રહી હતી એને ખબર હતી કે યહોવા ઈરે પૂરું કરનારો પરમેશ્વર છે, યહોવા જાયરે એ પ્રબંધ કરનારો પરમેશ્વર છે. આજે આપણે પ્રભુની પાસે રાખીએ. હાલેલુયા. રબા રબા શાંદોલો રબા રબા રબા. બની શકે એટલી પરમેશ્વરની આપણે આરાધના કરીએ. હાલેલુયા. આપણે જગતમાં કશું લઈને આવ્યા નથી, કશું લઈને જવાના નથી વહાવો, પણ પ્રભુએ આપણે જે શ્વાસ આપ્યો છે એ શ્વાસ પરમેશ્વર એની પાસે પાછો લઈ લેશે. હાલેલુયા. રબા શાંદના રબા 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 રીખાના રબા શાંદના રબા રબા રબા. આપણું જીવન પ્રભુને સમર્પણ કરે. આપણા હાથોને પ્રભુને સોંપી દઈએ, આપણા પગોને પ્રભુને સોંપી દઈએ. આજે આપણું મોઢું પ્રભુને કહીએ કે પ્રભુ મારું મુખ તને સમર્પિત કરું છું. તું જે કહેશ તે કહીશ, એ જ હું બોલીશ. પ્રભુ તું મને જ્યાં મોકલીશ ત્યાં હું જઈશ. પરમેશ્વર પિતા, આજે આપણે આપણું જીવનનું સમર્પણ કરીએ. કોઈ પણ જાતની આનાકાની કર્યા વગર, યુનાની સમાન બહાના બનાવ્યા વગર આજે પ્રભુની આગળ આપણે આવીએ. કેમ કે બહાના બનાવવા માટે ઘણા બધા આપણી પાસે બહાના નીકળી શકે છે, પણ જ્યારે
એવું એ બહાનું બનાવ્યું, એને કિંમત ન ચૂકવવી પડી. વાલાઓ આપણને કિંમત ચૂકવવી પડે છે. જ્યારે પ્રભુ નથી માનતા, નથી સાંભળતા, ત્યારે આપણે જ્યારે બીજા રસ્તે જતા રહીએ છીએ, કિંમતો ચૂકવવી પડે છે. વાલા આપણે ખર્ચાવવું પડે છે. પણ જ્યારે પ્રભુ કહે છે એ પ્રમાણે કહીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુના એ શિષ્યોએ 153 મોટી માછલી એમણે પકડી લીધી. આજે પ્રભુ ઈસુ આજે આપણને આપવા માંગે છે. શું તમે આજે અવાજ સાંભળી રહ્યા છો? શું પ્રભુ કહે છે તમે કરી રહ્યા છો? આજે આપણા કામનો ઉઘાડીએ, પ્રભુના વચનો સાંભળવા માટે, પ્રભુનો અવાજ સાંભળવા માટે. કદાચ એ મૃત્યુ પામ્યો હોત, તેને મૃત્યુને પણ માંગી લીધું, પણ એ પ્રભુનો અવાજ એને સાંભળ્યો. વાલાઓ આજે આપણે પ્રભુના અવાજને સાંભળીએ. હાલેલુયા. અને પરમેશ્વરની હાલેલુયા સ્તુતિ કરીએ. આજનો દિવસ પ્રભુએ આપણને એટલા માટે જીવન આપ્યું છે. પ્રભુ વચન કહે છે કે માણસને એટલા માટે બનાવ્યું છે કે તે મારી સ્તુતિને આરાધના કરે, મારી મહિમા કરે. એટલા માટે પરમેશ્વરે આપણને બનાવ્યું છે. સુખમાં હોય કે દુઃખમાં હોય, આપણે પરમેશ્વરની આરાધના કરીએ. ગમે તે પરિસ્થિતિમાં આપણે પ્રભુની આરાધના કરીએ. હાલેલુયા. થેન્ક યુ લોર્ડ, થેન્ક યુ જીસસ. હાલેલુયા. અને આપણો પરમેશ્વર એ પવિત્ર પરમેશ્વર છે. એ ન્યાય પરમેશ્વર છે. એ જ્યારે ફરી આવવાનું છે ત્યારે ન્યાયની સાથે આવવાનું છે. વાલાઓ એ આજે આપણને પ્રેમ કરી રહ્યો છે, પણ જ્યારે ફરી આવશે લેવાને માટે, ત્યારે એ ન્યાયની સાથે આવવાનું છે. આજે આપણે પ્રભુનું વચન કહે છે પ્રમાણે તે જેવો પવિત્ર છે તેવો આપણે પવિત્ર બનીએ. અને પ્રભુને કહીએ, પ્રભુ તારા સમાન મને બનાવી છે. તું જેવો દયાળુ છે તે મને દયાળુ બનાવી દે. તું જેવો પ્રભુ પ્રેમાળ છે તે મને પ્રેમાળ બનાવી દે. જેમ તારી પાસે મોટું હૃદય છે પ્રભુ, મને પણ મોટું હૃદય આપ પ્રભુ. હાલેલુયા લોર્ડ જીસસ. થેન્ક યુ લોર્ડ, થેન્ક યુ જીસસ. પ્રભુની આરાધના કરીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. હાલેલુયા. થેન્ક યુ લોર્ડ, થેન્ક યુ જીસસ. પવિત્ર મુજે બનાવે પ્રભુ, શુદ્ધ મુજે
કરી દે પ્રભુ, કેમ કે જે પવિત્ર છે તે તેનું મુખ જોશે. વાલા, જે પ્રભુને જોવા છે, પ્રભુની સંગતિમાં રહેવું છે, જેમ સ્વર્ગીય દૂતો રાતના દિવસ થાક્યા વગર એની આરાધના કરે છે, જો આપણે પણ પ્રભુની સાથે રહીને રાતના દિવસ આરાધના કરવી છે તો પોતાના હાથ ઊંચા કરીને ફરી એકવાર આપણે કહીએ કે પવિત્ર મુજે બનાવી દે પ્રભુ, શુદ્ધ મને કરી દે. કેમ કે આ સંસારમાં રહેતા ઘણા બધા પાપો, પરીક્ષાઓ આપણા જીવનમાં આવતા જ રહે છે વાલાઓ. ત્યારે આજે આપણને પ્રભુની ખૂબ જ જરૂર છે કે પ્રભુ ઈસુનું લોહી આપણને સગળા પાપોથી શુદ્ધ કરે, સર્વ ન્યાયથી આપણને શુદ્ધ કરે. કેમ કે પવિત્ર પરમેશ્વરને આપણે આપણી રીતે જોઈ શકતા નથી વાલાઓ. આપણે એના લોહીની જરૂર છે, એની મદદની જરૂર છે કે પ્રભુ આજે આપણને શુદ્ધ કરીને ફરી એકવાર આપણે કહીએ કે પ્રભુ મને પવિત્ર બનાવી દે, જેથી કરીને પ્રભુ હું તારી સમાન બની છું, હું તારા જેવા પૃથ્વી પર રહી શકું અને લોકો કહી શકે કે પ્રભુ ઈસુનો આ ખરેખર શિષ્ય છે, પ્રભુ ઈસુનો આ ચેલો છે. જેમ પિતાને કહ્યું, એને ના પાડી પણ વખત છતાં પણ લોકો એને જોઈને કહેતા હતા કે તું પણ એમાંનો છે, તું પણ એની સાથે હતો. વાલાઓ, આજે આપણું જીવન એવું હોય કે લોકો આપણને જોઈને કહી શકે કે તું પ્રભુ ઈસુનો શિષ્ય છે, કેમ કે તું એના જેવું બોલે છે, તું એના જેવું ચાલે છે, તું એના જેવા કામો કરે છે, તું એના જેવો દેખાય છે. આજે આપણું જીવન એક સાક્ષી સમાન છે. લોકો આપણે અંદર જોઈને કહી શકે કે આ ખરેખર ખ્રિસ્તી છે, કેમ કે બોલવું લોકો કહેતા હતા એને કે તારી બોલી પરથી ખબર પડી જાય છે કે તું પણ એમાંનો છે. શું આજે આપણે ખરેખર પ્રભુ જેવા છીએ? આજે પ્રભુની પાસે આપણે આવીએ અને પ્રભુને કહીએ, પ્રભુ મને તારી સમાન બનાવી દે, તાકી આ જગત જાણે કે ઈસુ મારી અંદર છે, ઈસુ મારી સાથે છે. હું જે પણ કામો કરું છું એમાં મારો ઈસુ મારી સાથે છે. ફરી એકવાર કહીએ, પવિત્ર મુજે બનાવે પ્રભુ, શુદ્ધ મુજે કરે પ્રભુ, તાકી તેરે જૈસા દિખૂં, તાકી તેરે જૈસા દિખૂં. જેટલા જણાના જેવા દેખાવા માંગે છે ફરી એકવાર કરીએ, પવિત્ર પરમેશ્વર પિતા, કે આ નવા દિવસનો એક નવો નિર્ણય અમે કરી શકીએ કે પ્રભુ અમે તારા જેવા દેખાઈ શકીએ. પ્રભુ ફરી એકવાર પ્રભુ તમે જે હાથો એમને બનાવ્યા હતા પરમેશ્વર પિતા, જે શ્વાસ તમારા અંદર ફૂંક્યો હતો પરમેશ્વર પિતા, એ પ્રથમના આદમ અને હવા પરમેશ્વર પિતા જે તારી સાથે વાતો કરતા હતા પરમેશ્વર પિતા, આજે ફરી એકવાર એ સ્વભાવથી અમને ભરીને પરમેશ્વર પિતા કે પ્રભુ તમે મળવાને માટે આવતા હતા. પ્રભુ ઈસુ આજે અમે તમારી સમાન બનવા માંગીએ છીએ કે પ્રભુ તમારી સાથે વાત કરે પરમેશ્વર પિતા. હાલેલુયા પ્રભુ, આજે અહીંયા જેટલા ઉપસ્થિત છે તમામને પ્રભુ તમારી પાસે લઈને આવું છું અને પ્રભુ મારી પ્રાર્થના છે જે વચન મેં સાંભળવા જઈ ત્યારે એ વચનને પ્રભુ તમે આજે અમારા સુધી પહોંચી પરમેશ્વર પિતા, ત્યારે અમારા કામો પ્રભુ એને સ્વીકાર કરે, અમારું હૃદયનો નિકાલ કરે પરમેશ્વર પિતા, અને આજનું વચન અમારા જીવનમાં કામ કરે પ્રભુ, અમારા જીવનમાં બદલાવ લઈને આવે, તારું વચન આજે અમને તોડે અને ફરી બનાવે. મારી પ્રાર્થના છે ઈસુની સમાન અમને બનાવે કે આ વચન પ્રભુ જે ક્યારે જોતું રહેવાનું નથી પરમેશ્વર પિતા, પણ હંમેશાને માટે એ અનંતકાળ સુધી પ્રભુ એ ટકનાવતા વચન છે. ત્યારે પ્રભુની પ્રાર્થના છે અમારા હૃદયમાંથી વચન જાય નહીં, અમારા મુખમાંથી વચન જાય નહીં, અમારા મનમાંથી વચન જતું ન રહે. એવી પ્રાર્થના છે, પણ હાલતા ચાલતા ઉઠતા બેસતા પ્રભુ અમે એ વચનોનું મનન કરીએ અને અમારા બાળકોને શીખવીએ ઉઠવા દે પરમેશ્વર પિતા. આજના વચનમાં આશીષ આપજો પરમેશ્વર પિતા, અને સાંભળેલા કારણો ઘણા ઘણા આશીર્વાદ કરજો, જેથી કરીને 30 ગણા 60 ગણા 100 ગણા ફળ આવે પરમેશ્વર પિતા, કે જેથી મારા પિતાને મહિમા મળે. મારી પ્રાર્થના છે. બાકીનો સમય તમારા હાથ
प्रार्थना सांगता प्रभू येशूच्या नावात Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु यीशु के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग हमारा विशेष संदेश जो फेवरेट संदेश है उसको देखेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 19 और 20 नियंत्रणों 20वां अध्याय 19 और 20। परमेश्वर हमारे आगे चुनाव को रखता है। क्या रखता है? चुनाव, पसंदगी। सुना के अपने आगे पसंद बराबर। अय्या परमेश्वर यहाँ पर जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों हमारे सामने रहता है। एक बाजू जीवन है, एक बाजू मृत्यु है, एक बाजू आशीर्वाद है और दूसरी साइड श्राप है। ओके, तो हम क्या पसंद करेंगे और आज हमें चुनना होगा। हालेलुया। अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं, जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं कि फिर मजदूरी करना चाहते हैं? कौन सी बात को पसंद करेंगे? अच्छा बच्चा, अच्छा लड़का बनना चाहते हैं, लड़की बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? कि मेरे गुंडा, चोरी करने वाला, कौन सा बच्चा आप बनना चाहते हैं? परमेश्वर हमारे सामने चुनाव, पसंदगी को रखा है। पढ़िए 19 और 20 आयत। नियम 30वां अध्याय 19 और 20। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि हमारे सामने परमेश्वर ने क्या रखा है? जीवन और मरण, मृत्यु और आशीष और श्राप को रखा है। हम जो भी पसंद करेंगे उसके अनुसार हमारा जीवन का अंत आएगा। ओके, तो यहाँ पर पहली बात परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। 20वीं आयत में लिखा है, पहली बात क्या करना है? यदि हमें लंबा आयुष्य चाहिए, यदि हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, तो पहली बात वहां लिखा है परमेश्वर को प्रेम करना। क्या करना है? परमेश्वर को प्रेम करना। क्या करना है? प्रेम करना है। जब यीशु मसीह के पास एक पंडित आया और पंडित उसको पूछ रहा है, मत्ती 22 अध्याय में लिखा है, 37 से आगे लिखा है, वहां पर एक पंडित आता है, कहता है कि सारे नियम शास्त्र में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तब यीशु ने क्या कहा? तू तेरे परमेश्वर पर पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे सामर्थ्य से प्रेम कर। ओके, और दूसरी आज्ञा वही कि जैसा तू अपने आप पर प्रेम करता है, प्रीति करता है, वैसे तू अपने पड़ोसियों की पर प्रीति कर। ओके, तो यहाँ पर पहली बात परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है? परमेश्वर से हमें प्रेम करना। किससे प्रेम करना है हमें? परमेश्वर से। सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? परमेश्वर से प्रेम करने की बात। हालेलुया। और कई लोग परमेश्वर को प्रेम करने में अभी कमती मालूम हुए। ऐसे मालूम है? ओके, हम लोग नौकरी है, बिजनेस है, तो सब लोग कहाँ जाएंगे? बिजनेस आते हैं ना, बारिश है, धूप है, या कुछ
कुछ भी है तो क्या करते हैं वो लोग? नौकरी करने जाते हैं, घर पे बैठे रहते हैं? नहीं करते, नहीं। सब लोग क्या करते हैं? काम पर जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, बिजनेस करने के लिए जाते हैं। घर पे बैठे रहते हैं, बारिश होता है, धूप होता है, वो नौकरी को प्रेम करते हैं, बिजनेस को प्रेम करते हैं, इसलिए वो लोग जाते हैं। ओके, तो अब हम परमेश्वर को प्रेम करें तो हमें भी क्या करना चाहिए? कलीसिया में कुछ भी हो जाए, हमें कलीसिया में आना चाहिए संगति के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी हो जाए जीवन में तो अभी हमें पहला प्रेम परमेश्वर को हमें करना है, क्योंकि रविवार को एक ही दिन हम लोग परमेश्वर की आराधना के लिए मिलते हैं। ओके, सप्ताह में 7 दिन, सोमवार से शनिवार तक हम लोग संसार का काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, हमारे खुद का काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक ही दिन नियुक्त किया है कि उस दिन में आके हम प्रभु की आराधना करें, उसका भजन करें। हालेलुया। लेकिन शैतान क्या करता है? परमेश्वर से प्रेम करने से बजाय हम लोग अपने आप को प्रेम करते हैं, अपनी परिस्थिति को प्रेम करने लगते हैं, हमारी नौकरी बिजनेस को प्रेम करने लगते हैं, और पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए, वो स्थान हम लोग परमेश्वर को नहीं देते। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर को प्रेम करना बहुत जरूरी है। और हम जैसे अपने आप को प्रेम करते हैं, ऐसे हमारे पड़ोसियों को, दूसरे को हमें प्रेम करना है। ओके, तो पहला यूहन्ना उसका 4 और मेरे ख्याल से 20 और 21 में क्या लिखा है? यहाँ पर पहले हमें परमेश्वर को, दूसरा हमें हमारे साथ में बैठा भाई बहन को हमें प्रेम करना है, प्रेज़ द लॉर्ड करना है। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि पहला प्रेम हमें परमेश्वर से करना है और दूसरा प्रेम हमारे पड़ोसी। यूहन्ना 13:35 में लिखा है, यदि हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं तभी सारे मनुष्य, सारे लोग जानेंगे कि तू उसके शिष्य हो। हालेलुया। प्रेम के द्वारा लोग हमें पहचानेंगे कि हम मसीह के शिष्य हैं, मसीह के चेले हैं। हालेलुया। यानी कि आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रेम करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, संगति करना पड़ेगा। एक दूसरे के प्रति जो दया है, जो प्रेम दिखाना है, वो हमें दिखाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर बाइबल में हमें लिखा है कि हमारा प्रेम कैसे होना चाहिए? कृत्य में होना चाहिए। कैसे है? क्रिया में। यदि मैं कहूँ कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ लेकिन बाइबल नहीं पढ़ूं तो मैं प्रेम करता हूँ? बोलिए। यदि मैं कहूँ प्रभु मैं तुझे प्रेम करता हूँ लेकिन उसकी संगति नहीं करूँ तो वो प्रेम कृत्य में है, क्रिया में है? नहीं, बराबर। यदि मैं प्रभु से कहूँ मैं प्रेम करता हूँ लेकिन प्रभु से हम लोग बातचीत न करें, प्रार्थना न करें उससे, तो क्या हमारा प्रेम प्रभु से प्रेम करते हैं? नहीं, क्योंकि हम लोग प्रार्थना के द्वारा हम उससे बातचीत नहीं कर रहे और संगति नहीं कर रहे उससे। यानी कि हम लोग क्रिया में परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे। ओके, सिर्फ बोलना नहीं है कि प्रभु मैं तुझे प्रेम करता हूँ शब्दों के द्वारा, लेकिन हमें क्या करना है? क्रिया करना है। ओके, और इसीलिए पहली बात परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। ओके, दूसरी बात जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनना। किसकी आवाज को सुनना? पुरानी व्यवस्था विवरण उसका 20 और 20 में क्या लिखा है? पहला है परमेश्वर से प्रेम करना, दूसरा लिखा है परमेश्वर की आवाज को सुनना। किसकी आवाज को सुनना है? परमेश्वर की आवाज को सुनना। ओके, जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं
परमेश्वर अपनी कलीसिया को संदेश देता है। कौन सा संदेश देता है? प्रकाशित वाक्य 3:22। परमेश्वर अपनी कलीसिया को, 7 कलीसिया है प्रकाशित वाक्य में, तो 7 कलीसिया को परमेश्वर एक बात कहता है, और वो कौन सी बात है? जिसके जो आत्मा कलीसिया को कहता है, जिसके कान हो वो सुने। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर क्या कहता है? जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा क्या कह रही है। हालेलुया। आत्मिक कान होने चाहिए। ओके, आत्मिक कान, सुनने वाले कान हमारे होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर किससे बात कर रहा है? जो लोग के आत्मिक कान है उससे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए प्रभु का वचन वो भी कहता है कि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, लेकिन उसके पालन करने वाले हैं। क्या करना है? पालन करने वाले। ओके, सुनने के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे आशीष हमें देता है। ओके, निर्गमन उसका 15 और 26 में लिखा है, यदि हम परमेश्वर की आवाज को सुने और उसका पालन करेंगे, मानेंगे, तब मिस्र की सारी बीमारियां आपके ऊपर, मेरे ऊपर परमेश्वर लाएगा नहीं। पढ़िए निर्गमन 15:26। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरी आवाज को सुनोगे, उसको पालन करोगे, तो मिस्र में जो मरकी भेजी थी, बीमारियां भेजी थी, वो बीमारियां मरकी आपके शरीर में आएंगी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पीछे, मेरी आवाज को सुनकर मेरे पीछे चलते हो। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारा सुनना जो है कैसे होना चाहिए। रोमन 10 और 17 में लिखा है, सुनने के द्वारा क्या आता है? विश्वास आता है। क्या आता है? और सुनना कहां से होता है? परमेश्वर के वचनों के द्वारा। रोमन 10 और 17 को पढ़िए। ख्रिस्तना वचन द्वारा संदेशो सांभळવામાં આવે છે। ओके, मसीह के वचन को हमें सुनने के द्वारा क्या होता है? विश्वास आता है। हालेलुया। जब बाइबल पढ़ोगे आप, प्रभु का विश्वास आपके अंदर बढ़ेगा। ओके, दूसरा कोई भी बात नहीं है, माध्यम नहीं है जिसके द्वारा आपका विश्वास बढ़े, लेकिन एक माध्यम जो प्रभु ने कहा है और वो है वचन। हालेलुया। बाइबल पढ़ोगे, आपका विश्वास मजबूत होगा। निराशा होगी, निराशा चली जाएगी। दुख होगा, दुख चला जाएगा। हालेलुया। अकेलापन लगता है, अकेलापन चला जाएगा जब आप वचन को पढ़ोगे। यानी कि परमेश्वर का वचन यदि आप पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, तो प्रभु आपके अंदर विश्वास देगा, उत्तेजन देगा, सामर्थ्य देगा कि जिसके द्वारा आप अच्छा जीवन जी पाओगे। नीति वचन 1:33 में लिखा है, सुनने के द्वारा परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। नीति वचन 1:33। तो यहाँ पर जो मेरी बातों को सुनेगा वो सही सलामती में रहेगा। हालेलुया। जितना प्रभु के वचन को आप सुनोगे, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। जब प्रार्थना करके आप गाड़ी चला के बाहर जाओगे, प्रभु आपको सुरक्षा देगा। यानी कि हर समय आपको प्रभु की आवाज को सुनकर बाहर जाना है। हालेलुया। प्रभु की सुरक्षा आपके ऊपर है, शत्रु भी आपको छू नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर या सलामती वो आपके आजू बाजू रहता है। प्रभु हमारा खड़ और हमारा ढाल बन जाता है। नीति वचन 4 और 20 में लिखा है, क्या लिखा है?
मेरा बेटा हमारा बेटा हमारा शब्दों पर हमारी बातों पर काम कर। तो यहाँ पर लिखा है मेरे शब्दों पर लक्ष्य और मेरी बातों पर काम कर। ओके, क्या करना है? परमेश्वर पिता को शब्दों पर हमें लक्ष्य लेना है और उसकी बातों पर कान लगाना है। हालेलुया। तब हमारा जीवन जो है जैसा है वैसा नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पर पहली बात, सुनने के लिए हमें नम्र बनना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हमें नम्र बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? हमें नम्र बनना पड़ता है। हालेलुया। झुकना पड़ता है। सुनने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें झुकना पड़ता है। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं? रमतियाड़ स्वभाव रहता है उनका, अनादिम रहते हैं, खेलने का स्वभाव रहता है। ओके, और इसीलिए वे लोग परमेश्वर की आवाज को, आगे की आवाज को सुन नहीं पाते, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ रहता है? खेल में रहता है, रमत में रहता है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके शब्दों पर ध्यान, उसके शब्दों को हम ध्यान से सुने, उसकी बात को ध्यान से सुने। उसके बाद कौन सी बातें रुकावट आ सकती है सुनने के लिए? ओके, पहली बात तो हमारा हृदय कठिन हो जाता है। ओके, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की आवाज सुने, लेकिन जो ये दिल, ये हृदय क्या करता है? कठिन बना देते हैं। परमेश्वर के आगे उसके वचन को न सुनने के लिए हमारे दिल को हम कठिन बना देते हैं। और इसीलिए प्रभु चाहता है कि पहला, सुनने के लिए हमारा दिल संपूर्ण होना चाहिए। ओके, दूसरी बात, कई लोग प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाते क्योंकि संसार के प्रति उनका लगाव होता है। इसके प्रति? संसार की बातों को वो ज्यादा सुनते हैं। लोग टीवी को ज्यादा देखना चाहते हैं, सीरियल को ज्यादा देखना चाहते हैं, पिक्चर को ज्यादा देखना चाहते हैं। ओके, बुरी बातों को सुनना चाहते हैं, पिक्चर के गाने को लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम संसार के लगाव यदि आपके अंदर है तो प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाओ, क्योंकि संसार को आप सुन रहे हैं, संसार की बातों को आप सुन रहे हैं, तो परमेश्वर की आवाज को आप सुन नहीं पाओगे। उसके बाद जो आत्मा से जन्मा है वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है। कौन सुनता है? जो आत्मा से जन्मा है, जो उद्धार पाने व्यक्ति है, वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है। जॉन वेस्ली का नाम सुना है? कौन? जॉन वेस्ली, मेथोडिस्ट चर्च का स्थापक जॉन वेस्ली। ओके, जब एक यात्रा में जा रहा था तो वहां पर जो मॉर्मन मिशनरी थे, उन्होंने उसको एक प्रश्न पूछा कि क्या तू नया जन्म पाया हुआ है? तो बोल नहीं पाया। ओके, तो यहाँ पर कई बार हम बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, प्रभु को जानने का ऐसा लगता है, प्रभु को जान रहे, बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना करें, संगति करें, तो हमको लगता है कि प्रभु को जान रहे हैं। नहीं, नया जन्म जब तक हम नहीं पाते, प्रभु यीशु को हमारे दिल में नहीं ग्रहण करते, तब तक हम लोग नए जन्म से नहीं उद्धार पाए। ओके, नए सिरे से हमें उद्धार पाना जरूरी है। और बाइबल में यूहन्ना 10 और 27 में लिखा है, मेरा घीटा, मेरा मारू भेटू मारो आवाज सामने છે, मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती है। हालेलुया। यदि हम यीशु के बेटा बेटी है तो उसकी आवाज को हम लोग सुनेंगे, लेकिन हम यीशु के बेटा बेटी नहीं है तो उसकी आवाज को हम लोग नहीं सुन पाएंगे। और इसीलिए प्रभु हमें और भी कहते हैं, घमंड जो हमें सुनने नहीं देते। नीति वचन 29 उसका 25 पढ़ो। नीति वचन मनुष्य का भय, बराबर, फांदारू बनता है। मनुष्य का भय हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने नहीं देता। ओके, रुकावट के लिए हमारे सामने आ जाता है। नामान को हम जानते हैं। ओके, नामान के अंदर क्या था? एक मान्यता थी कि भाई प्रभु का दास मेरे पर सिर पर हाथ रखेगा
मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। ओके, तो कई बार हम सोचते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु मैं ऐसे ऐसे प्रार्थना करूंगा और प्रभु तू मेरी प्रार्थना को सुन ले, प्रभु मुझे किसी रीति से चंगा कर दे, छुटकारा दे दे। हम लोग प्रभु को क्या कहते हैं, सलाह देते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के दास ने क्या, एलिया ने क्या बोला, एलिसा ने क्या बोला, एलिसा के दास ने बोला कि भाई मेरा स्वामी कहता है कि अंदर में जा और 7 बार तो डुबकी लगा दे। ओके, तो नामान ने जो सोचा था वो कुछ हुआ नहीं। ओके, तो कई बार हम लोग जब खोटी मान्यता, जो पुरानी मान्यता में हम परमेश्वर के पास आते हैं, तब प्रभु की आवाज को हम लोग नहीं सुन पाते। ओके, तो हमारी मान्यताओं को बाजू पर रख के परमेश्वर की आवाज को हमें सुनना होगा। ग्रीक शब्द सुनने के लिए लोगोस शब्द लिखा गया है वचन, और एक है मेमा। ओके, लोगोस का मतलब है जो लिखा हुआ वचन है वो लोगोस, और मेमा का मतलब है परमेश्वर का वचन, जीवित वचन जो हमारे से बात करता है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे से बातचीत करता है। मत्ती 4:4 में क्या लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, लेकिन हर एक शब्द जो उसके मुंह से निकलता है उससे वो जीवित रहेगा। ओके, तो ये लिखित वचन है हमारे पास। बाइबल जो है वो क्या है, लिखित वचन है। कौन सा वचन है, लिखित वचन है। ओके, लेकिन जब प्रभु हमारे से बाइबल पढ़ता है, प्रभु हमें क्या करता है, बातचीत करता है। वो क्या है, रेमा। वो क्या है, रेमा शब्द है। ओके, तो यहाँ पर पीड़ितों के काम उसका 17 और 11 को जरा पढ़िए। पीड़ित को काम 17 का 11, पीड़ित कृत्य 17 किया। हमें कैसा बनना चाहिए, जो थिस्सलुनीकि की जो कलीसिया है उससे बढ़कर हमें कहां पर, कौन सी कलीसिया का नाम लिखा है, पढ़िए। रोमन प्रेरित कृत्य 17 क्या वाचो। बेरिया के लोग कैसे थे, अधिक गुणवान। हाँ, પૂરેપૂરા ઉમંગથી સુવાર્તાનો तो ये लोग क्या कर रहे थे, एक तो मंडली थिस्सलुनीकि के लोग थे और बेरिया के लोग क्या करते थे, पौलुस प्रचार करता था तो वो लिख लेते थे। क्या करते थे वो लोग, वचन को लिखते थे कि पौलुस जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं, और घर पे जाकर वो क्या करते थे, संशोधन करते थे। क्या करते थे वो, तो वचन को लिखने का, यहाँ पर जब आप आते हैं तो वचन को लिखो और फिर घर पे जाकर पढ़ो। हालेलुया, रूम में जाकर पढ़ो। ये परमेश्वर का वचन जो यहाँ पर जो लिखा है वो सही है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर पौलुस जो भी कुछ बोल रहा था, ये बेरिया के लोग क्या करते थे, घर पे जाके वो प्रभु के वचन को संशोधन करते थे। और पवित्र आत्मा ही क्या करता है, हमें मदद करता है प्रभु के वचन को समझने के लिए। ओके, सो प्रभु की आवाज को सुनना जरूरी है। कैसे प्रभु की आवाज को हम सुन पाते हैं, बोलिए। प्रभु की आवाज कैसे कैसे आती है हमारे पास, वचन के द्वारा, फिर प्रार्थना के, जब प्रार्थना करते हैं, उपास करते हैं, पवित्र आत्मा ने बोला। कोरिन्थियों का 13 में लिखा, जब कलीसिया, अंतियोकी कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, उपास कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने बोला। ठीक है, कैसे बोलता है परमेश्वर, कैसे बोलता है, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा प्रभु बोलता है। ये किसको बोला, साउल को बोला है, प्रभु ने दर्शन दिया, उसको बोला। फिलिप्पुस को बोला है, फिलिप्पुस को बोला कि भाई तू कहाँ जा, खोजा के पास जा है। तो प्रभु परमेश्वर
वचन के द्वारा बोलता है, प्रभु के दासों के द्वारा, प्रभु भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोलता है, शिक्षकों के द्वारा प्रभु बातचीत करता है, ओके, पास्टरों के द्वारा प्रभु बातचीत करता है। परमेश्वर दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा वचन बोलता है। कई बार प्रभु परिस्थितियों के द्वारा बोलता है। किसके द्वारा बोलता है? परिस्थितियों के द्वारा बोलता है। हालेलुया। सो प्रभु की आवाज आप अलग अलग माध्यम से सुन सकते हैं, लेकिन हमारे कान हमेशा क्या करना चाहिए? खुले रखने चाहिए। क्या करने चाहिए? खुले रखने चाहिए। और तीसरा वचन, तीसरी बात वहां पर है, उपनियम में 30 का 20 में लिखा है, पहला प्रेम करना, फिर उसकी वाणी को सुनना, और तीसरा पहले बढ़ती रहे, उसके लिपटे रहे। क्या करना है हमें? परमेश्वर से लिपटे रहना। कौन सा जानवर का बच्चा उसकी मम्मी से लिपटा रहता है? बोला चले। कौन सा जानवर का बच्चा अपनी मम्मी से चिपका रहता है? दीदी, हाँ, उतना भी नहीं आता। बंदर का बच्चा अपनी मम्मी से क्या करता है? चिपका लेता है। क्या करता है? हाँ, तो एक पेड़ पर से दूसरे पेड़ पर वो छलांग लगाता है, उसका बच्चा क्या करता है? मम्मी से चिपका लेता है। एक घर से दूसरे घर पर वो छलांग लगाता है, तो अपना वो बच्चा क्या कर रहा है? मम्मी से चिपका रहता है। ओके, यदि वो बच्चा कहे, नहीं मम्मी, मैं अभी बड़ा हो जाऊंगा, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मैं आपको लिपटा नहीं रहूंगा, तो क्या होगा? वो गिर जाएगा, मर जाएगा। क्या होगा चंपा? क्या होगा? बच्चा मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मम्मी की जरूरत है। मम्मी से उसको लिपटना जरूरी है, चिपकना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा? वो बच्चा गिर कर मर जाएगा। ओके, और इसीलिए यहाँ पर जो लिखा है, परमेश्वर को हमें लिपटे रहना है, बढ़ गिरे हो। कौन सी परिस्थिति में परमेश्वर से हमें लिपटे रहना है? पहला है उत्पत्ति 6, 9 और 12 में लिखा है, ये संसार दुष्टता से भरा है। इस दुष्टता से भरे संसार में हमें इसको परमेश्वर को लिपटे रहना है। संसार में क्या है? बुराई है। यीशु ने कहा संकट है, मुश्किल है, तकलीफ है, लेकिन हमको किसको लिपटे रहना है? परमेश्वर से। हालेलुया। नूह के बारे में लिखा है, पढ़िए 9 और 12, उत्पत्ति 6, 9, 12, 9 कलम 12 कलम। सुनो, उसके पीढ़ी में लोग कैसा था? न्यायी व्यक्ति था, सीधा व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। ओके, तो संसार, उस संसार में क्या था? पूरा पाप था। लोगों का सोचना भी क्या है? पाप से भरा हुआ था। लेकिन उस संसार में परमेश्वर के साथ लिपटने वाला, परमेश्वर के साथ खड़ा रहने वाला कौन था? नूह था। हालेलुया। यानी कि हमें भी, हमारी पीढ़ी में दुष्टता है, संसार पाप से भरा हुआ है, लोगों के विचार पाप से भरे हुए, लोग दूसरे का अच्छा नहीं सोचते। ऐसे जमाने में परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम लोग लोगों के समान सीधा व्यक्ति बन जाए, प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति हम लोग बन जाए। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि दुष्टता के बीच में भी, बुराई के बीच में भी, पाप के बीच में भी हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? न्यायी का जीवन जीना चाहिए, सीधा व्यक्ति का जीवन हमें जीना चाहिए। दूसरा व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, वो है यूसुफ। 39, 39, 9 की कलम, 12 की कलम, उत्पत्ति 39, उत्पत्ति 39, 9 और 12 कलम। वहां क्या लिखा है? यूसुफ के विरुद्ध में क्या आया? पाप, व्यभिचार का पाप। वो स्त्री पोटीफर की पत्नी कहती है, मेरे साथ सो जा और पाप कर।
लेकिन वो क्या करता है कि परमेश्वर के सामने मैं ऐसा बड़ा काम, बड़ी बुराई का काम कैसे करो, दुष्ट कृत्य कैसे करो, और वो अपने वस्त्र को वहां पर छोड़कर वहां से भाग जाता है। ओके, यानी कि आपको और मुझे क्या करना है? पाप को ना कहना है। किसको ना कहना है? हमें पाप को ना कहना है और परमेश्वर को हाँ कहना है। किसको ना कहना है? पाप को। किसको ना कहना है? और किसको हाँ कहना है? परमेश्वर को हमें हाँ कहना है। ओके, तो यहाँ पर यूसुफ कहां पर भाग गया? पाप को छोड़कर वो भाग गया। वो चाहता तो पाप कर सकता था, लेकिन उसने कहा मैं पाप नहीं करूंगा। वो पाप से भाग गया। उसके बाद अय्यूब 1:20 और 22 कलम में लिखा है, जब दुख आता है, संकट आता है हमारे जीवन में, तब प्रभु से हमें लिपटे रहना है। अय्यूब के जीवन में कौन सा समय आया? खरबोपति था। कैसा था वो? एशिया का सबसे धनवान व्यक्ति था उस जमाने का। ओके, उसके बाद उसकी सारी संपत्ति जो ऊंट के रूप में थे, गधे के रूप में थे, बैलों के रूप में थे, तो सारे बैलों को वो चुरा के भागे, ऊँटों को चुरा के भागे। जो उनके ऊंट जो भेड़े थे उसके ऊपर आग आई और वो भस्म हो गए। उसके बेटा बेटी क्या कर रहे थे? सेलिब्रेशन कर रहे थे, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे, और एक बड़ा तूफान आया, पूरा घर नष्ट हो गया और वो सारे अय्यूब के बेटा बेटी बन गए। उसके पत्नी क्या बोलती है कि तो उसके शरीर में जब फूला हुआ तो वो कहती है तू श्राप दे परमेश्वर से और तू मर जा। ऐसे समय में अय्यूब क्या कर रहा है? परमेश्वर को धन्यवाद कहता है। क्या कहता है? परमेश्वर तूने दिया और तूने लिया, तेरे नाम को धन्यवाद। हालेलुया। यानी कि हमें हर परिस्थिति में क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना। क्या देना है? धन्यवाद। परमेश्वर को लिपटे रहना, परमेश्वर को श्राप नहीं देना। जब सुख हो तो प्रभु से प्रार्थना करना, ऐसा नहीं। जब दुख का समय है तभी हमें प्रार्थना करना है, स्तुति करना है, आराधना करना है। सुख का समय तभी परमेश्वर से हमें उसके लिपटा नहीं रहना, लेकिन सारे समय में परमेश्वर को हमें लिपटे रहना है। ओके, उसके बाद जब शत्रु हमारे सामने आए तब भी हमें परमेश्वर को लिपटे रहना। दूसरा इतिहास 20 और उसका 3। यहोशापात के विरुद्ध में बड़ी सेना आ गई यहोशापात के विरुद्ध में, लेकिन उसने क्या किया? दूसरा इतिहास 20 और उसका 3। बीजो काल मुद्दा 20 અને 3। यहोवानी शोध करवा लगा, यानी कि उपवास उसने किया, परमेश्वर को प्रार्थना करने लगा। ओके, जब शत्रु हमारे विरुद्ध में आता है, तकलीफ हमारे विरुद्ध में आती है, लोग हमारे विरुद्ध में उठते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के शरण में जाना चाहिए। किसके शरण में? आज मैं किस शास्त्र पढ़ रहा था 73 और उसका अंतिम वचन को पढ़ो। क्या लिखा है? तोते अरे छिल्ली कलम 73 किस शास्त्र कहते ईश्वर પાસે કેમ કે ઈશ્વર પાસે આવવું તેમાં મારું कल्याण છે। हालेलुया। परमेश्वर के पास आना मेरे लिए क्या है? लाभ है। क्या है मेरे लिए? हाँ, यानी कि आपको और मुझे परमेश्वर के पास जाना है, उससे लिपटे रहना है। ओके, तो यहाँ पर ये 3 बातों को हमने देखा। प्रेम करना है परमेश्वर से, उसकी वाणी को सुनना है, यानी कि आज्ञा पालन करना है, प्रभु के वचनों पर चलना है, और तीसरा प्रभु से लिपटे रहना है। लिखा है क्योंकि उसमें ही तेरा जीवन और आयुष्य की वृद्धि है। एक लड़का अपनी मम्मी से थोड़ा गुस्सा हो गया और वो गुस्से में जाकर एक बड़ी जो खीन होती है
तराई होती है, उसके पहाड़ के ऊपर जाता है, नीचे तराई है, और वो बच्चा बहुत गुस्से में है और अपनी माँ से गुस्से में भाग गया और वो बोल रहा है आई हेट यू, आई हेट यू। क्या बोला? मैं तुझे तिरस्कार करता हूँ, मैं तेरा तिरस्कार करता हूँ। तो सामने से वो उसका आवाज सामने से आया, पढ़ो, इसको बोलते हैं पढ़ो। सामने से वो आवाज आया कि मैं तेरा तिरस्कार करता हूँ, मैं तिरस्कार करता हूँ। ये बच्चा घबरा गया, उसको लगा कि सामने कोई लड़का है, वो मुझे भी बोल रहा है कि मैं तेरा तिरस्कार करता हूँ, मैं तेरा तिरस्कार करता हूँ। वो भागकर अपनी मम्मी से पास गया और उसकी मम्मी को बोला कि मैंने जब कहा कि मैं तेरा तिरस्कार करता हूँ, मैं तेरा तिरस्कार करता हूँ, ये बोला, तो सामने से वो एक लड़का मेरे गुस्से में मेरे को वही बोला। तो उसकी माँ बोलती है अब तू जा और क्या बोल, आई लव यू, मैं तुझे प्रेम करता हूँ, मैं तुझे प्रेम करता हूँ। तो जाकर पहाड़ पर गया और तराई के ऊपर जाके वो बोला कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ, मैं तुझे प्रेम करता हूँ। तो सामने से आवाज कौन सा है? मैं तुझे प्रेम करता हूँ। तो जो हम बोलते हैं वही हम काटते हैं, बराबर? जो हम बोलते हैं वही हम काटते हैं। ओके, प्रेम बोलोगे तो प्रेम मिलेगा, घृणा बोलोगे तो घृणा मिलेगी, तिरस्कार बोलोगे तो तिरस्कार मिलेगा, गुस्सा बोलोगे तो गुस्सा मिलेगा। तो आप जो भी बोलते हैं वो आपको वापस उसको आपको मिलने वाला है। और इसलिए प्रभु का वचन लिखा है कि जो देश मेरे पितरों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को परमेश्वर ने देने का वादा है, उसमें तू वास करेगा। हालेलुया। आपको मुझे कहां पर कौन से देश में जाना है? कनान देश में तो नहीं जाने वाला है हम लोग, अभी कौन सा देश में जाने वाले हैं? स्वर्गीय देश में जाना है। कहां जाना है हमको? स्वर्गीय देश में हमें जाना है। हालेलुया। और उस देश में जाने के लिए अभी हमें 3 बात करना है। कौन सा बात करना है? 3 बातों को यहाँ पर पृथ्वी पर हमें करना है। पहली बात क्या करना है? प्रेम करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। क्या करना है हमें? बोलिए, परमेश्वर से और एक दूसरे से हमें प्रेम करना है। दूसरी बात क्या करना है? पृथ्वी के ऊपर प्रभु की आवाज को सुनना है। किसकी आवाज को सुनना है? आत्मा क्या कहता है उसकी आवाज को हमें सुनना है और पालन करना। क्या करना है? जो सुनते हैं उसके ऊपर हमें चलना होगा। हालेलुया। और तीसरा बात क्या करना है? परमेश्वर से हमें लिपटे रहना है। शाद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया गया उसके विश्वास के कारण। उन्होंने कहा कि हम उसके सामने, जो बड़ी मूर्ति है उसके सामने नहीं झुकेंगे। और शाद्रक, मेशक, अबेदनगो को अग्नि की भट्टी में डाल दिया गया। वहां पर भी वो लोगों ने परमेश्वर को क्या बोला? हाँ बोला। हालेलुया। परमेश्वर को बोला कि प्रभु हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम दूसरे के सामने झुकेंगे नहीं। दानियल को कहां पर बैठ दिया गया? सिंह की गुफा में। और वहां पर वो जिंदा बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से वो लिपटा रहा। हालेलुया। विश्वास में परमेश्वर से वो लिपटा रहा और इसीलिए सिंह ने उसको खाया नहीं, अग्नि ने उन लोगों को छुआ नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के विश्वास में मजबूत थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपका और मेरा विश्वास भी मजबूत होना चाहिए। यदि हमें स्वर्ग में जाना है तो दूसरा प्रभु की आवाज को सुनकर उस पर चलना होगा। और अंत तक बाइबल बताती है, बाइबल क्या कहती है? प्रकाशित वाक्य 22 और 14। જીવનના ઝાડ પર તેઓને હક મળે અને તેઓ દરવાજાના થઈને નગરમાં પ્રવેશ કરે, એ માટે જેઓ પોતાના વસ્ત્ર ધોવે છે તેઓને ધન્ય છે. જેઓ પોતાના વસ્ત્ર ધોવે છે તેઓને ધન્ય છે. प्रभु को हमें लिपटे रहना है और
जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा वही जीवन का उगन पाएगा। हालेलुया। यानी कि आपको और मुझे अंत तक विश्वास योग्य रहना होगा। हमारे वस्त्र पवित्र रखने होंगे। हालेलुया। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें और हम सबको प्रभु स्वर्गीय देश में ले जाना चाहता है। कनान हमारा स्वर्गीय देश। खड़े हो जाएंगे और अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद। आइए प्रभु से कहें, प्रभु मैं तुझे प्रेम करूंगा। बोलिए मेरे पीछे, प्रभु मैं तुझे प्रेम करूंगा। प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। आपकी आवाज में मानूंगा। मैं आपको लिखते रहूंगा। कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, लेकिन मैं विश्वास में मजबूत रहूंगा। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आपके पीछे में चलता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में हम समर्पित करें। जो वचन हमने सुना है उस पर हमें चलना होगा। हालेलुया। प्रभु ने दो में से एक ही बात को चुनने के लिए कहा है, जीवन या मृत्यु। हमें जीवन पसंद करना होगा। आशीष और श्राप, उसमें प्रभु कहता है हमें आशीष पसंद करना होगा। जो भी हम पसंद करेंगे, जो भी हम चुनाव करेंगे, उसके आधार पर उसके पीछे हमें चलना होगा, उसके प्रेम करना होगा। बाइबल पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, उसकी संगति में आने के द्वारा हम उसको ज्यादा प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। प्राधान्य देने के द्वारा हम उसको ज्यादा प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की वाणी को सुनना है, उसकी आवाज को सुनना है, वचन के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा, सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा। प्रभु जो भी कहता है उसको सुनकर उस पर हमें चलना होगा। फिलिप चला। हालेलुया। साउल ने उसके आज्ञा को पालन किया। पौलुस जो साउल पहले था, उसने प्रभु की आवाज को सुना। अनानिया ने प्रभु की आवाज को सुनकर उसने ऐसा ही किया। हालेलुया। रिबाला कुराबा निदाला शादाराडाबा। प्रभु से लिपटे रहना। इस बुंदा जगत में, पाप रूपी जगत में हमें लोग के समान न्यायी जीवन जीना है। हालेलुया। पाप हमारे सामने है, आजू बाजू है, यो सब के सवाल में कहना है, पाप को ना करके हमें भागना होगा। हमें प्रभु का कहना होगा, हाँ प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निकाला बारिदाला अय्यूब के समान ये दुख आता है, तकलीफ आता है, तो भी हमें प्रभु से कहे, प्रभु तूने दिया, तेरा धन्यवाद। हमें हर एक परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद के साथ उससे लिपटे रहना है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। रिबाला शाबाला निदाला बाला ओ शकारा बरिया दराड़ा बाला। आइए प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहेंगे, यस लॉर्ड, मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे कनान रूपी स्वर्ग में प्रवेश करना है, और इसीलिए प्रभु मैं आपसे प्रेम करूंगा। मैं आपके आवाज को सुनकर पालूंगा और आपसे लिपटा रहूंगा। हालेलुया। आपको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने हाथों को प्रभु को बताएं। हालेलुया। प्रभु से कहिए, यस लॉर्ड। हालेलुया। 3 बातों को मैं हमारे जीवन में करूंगा। प्रेम करूंगा, तेरे आपकी वाणी को सुनूंगा और आपसे लिपटे रहूंगा। हालेलुया। प्रेम करिस प्रभु को तब और तुम्हारी वाणी में सामने में पालन करिस तब अपने बढ़ के रहिस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ सकरवरिया दलबरी बलावा शबलावरी दलबा। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता, जो वचन आज यहाँ पर बोया गया है 100 गुना फल लाने पाए। जो अच्छी भूमि है वो 100 गुना फल लाने पाए। मेरी प्रार्थना मैं प्रार्थना करता बेटा, आज जो वचन को बोया गया यीशु के नाम से सबको इस वचन के द्वारा आशीष देना और उनके जीवनों में परिवर्तन लेके आना मेरी प्रार्थना है। प्रभु हम आशीष को चुनने पाए और जीवन को चुनने पाए, और मैं प्रार्थना करता जैसा आत्मा कहता है हमारे कान हम सुनने के लिए और उस पर चलने के लिए आप हमारी मदद करना, जिसके द्वारा हम चंगे रहे, हम भले रहे, सुरक्षित रहने पाए।
क्योंकि आपकी आवाज सुनने के द्वारा हम सुरक्षित हो जाता है। प्रभु फिर से पिता हालेलुया, जो भी वचनों को बोला गया वो फल लाने वाला बने, मेरी प्रार्थना। जो लोग नहीं आ पाए आज बारिश के कारण, परिस्थितियों के कारण, लेकिन हम चाहते हैं उनको भी आने का मौका देना पिता, और उनको आप तो ज्यादा आपसे प्रेम करने वाले बने, ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु उनको परिवार को, जीवन को आशीष देना यीशु के नाम से पिता। जो लोग आए उसके लिए धन्यवाद पिता। उनको हर एक को प्रार्थना में, वचन में, संगति में, विश्वास में उनको मजबूत बना पिता। आपके आने तक हम विश्वास योग्य मालूम पड़े, पवित्र मालूम पड़े, और आप जब आए बादलों पर अब सब लोग उठा लिए छाए पिता, और आपको मिलने के लिए हमें तैयार रखना पिता। सारा आदर, सारी महिमा आपके नाम को देते हुए यीशु के नाम से इस दुआ को कबूल करिए।